A very good morning and welcome back. Today we will discuss about variation of mass with velocity. According to Newtonian mechanics, mass of a body remains constant if its velocity changes. But according to Einstein, a body in motion will have different mass as compared to a body in rest. So which of the two is true? That is the point which we are going to discuss in our today's lecture. Remember, before starting, I just want you to recall what is called as conservation of linear momentum. बस ये रिकॉल कर लीजिए कि वो क्या चीज है. ठीक है. Otherwise we will have a small digression from our continuous discussion and we will see what is conservation of momentum. Fine. So to start with, let us consider two different frames. Anyways, we had been only discussing frames since the starting of this semester. Let us consider a frame S prime. I'm deliberately taking S prime first this time, and a frame which is fixed S. Okay. Let us also specify the axis. This is X axis, X prime axis, Y prime axis, Z prime, and this is your X prime. Sorry, this should be X, this should be Y, and this should be Z. This is just X axis. It's not primed. This is fixed. Fine. And the primed frame of reference is moving towards the stationary frame S. Fine. So abhi tak we were actually taking the moving frame on the right side and it was moving along positive x direction. That's why it was just receding from the fixed frame. Abhi what we have done is we have taken a screenshot या picture ले ली है तब जबकि ये frame पहले है and it is approaching towards S. Fine. उसके पीछे एक छोटा सा reason है that will become clear, that will be very clear to you in a moment. And in this, what we have is a ball, a perfect elastic ball. Let's call this as A. And this ball is thrown upward towards y-axis in this direction, such that it is having a velocity in y direction called as uy. Okay, so ball A is having a velocity in y direction called uy. Then you have another ball, ball B, but in different frame, and this ball B is thrown downwards. This ball is thrown downwards with velocity uy. So I will have to take minus uy. But because this is a primed frame, I should not forget to put that this uy will be uy prime. Okay, this uy will be uy prime. और जब none of these frame were moving, आपने velocity नापी इन दोनों की, तो इन दोनों की एक constant fixed velocity थी. Let us say कि इसकी value थी यहाँ u. I'm calling this as u. Okay, and this was minus u. When we have seen that there was no motion. अब क्या हुआ? Our frame is moving with velocity v and is approaching towards the stationary frame. तो ग्रीन बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, रेड बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, एंड एक ऐसा मोमेंट आए, वी आर ट्विकिंग द सिस्टम इन सच अ वे कि इन दोनों में बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी कोलिजन हो जाए. ठीक है, इन दोनों में कोलिजन हो जाए. एंड इफ दिस कोलिजन विल हैपन, देन टकराने के बाद ये वापस लौटेंगी. अब कोलिजन दो तरीके का होता है, इलास्टिक और इनइलास्टिक. हम मान रहे हैं कि अभी फिलहाल परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होगा. ठीक है, और जब आप रेस्ट फ्रेम में इस मास को देख रहे हैं या रेस्ट फ्रेम में किसी मास को चेक कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि दैट बॉडी इज हैविंग मास m नॉट.
और अगर आप रेस्ट फ्रेम में हैं और मूविंग फ्रेम वाली बॉडी का मास देख रहे हैं तो आप उसे बोलेंगे m। ठीक है, तो वी विल जस्ट टेक दैट इनटू अकाउंट अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। अभी अगर आपसे पूछा जाए दैट अगर आप स्टेशनरी फ्रेम के बारे में बात करें, सो यू हैव इन स्टेशनरी फ्रेम, अगर आपसे कहें कि बॉडी ए की वेलोसिटी, तो आई एम जस्ट यूजिंग अ वर्ड ए, की वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या है? इट इज जीरो, इट इज नॉट मूविंग अलोंग एक्स डायरेक्शन एट ऑल। वेलोसिटी ऑफ ए अलोंग जेड डायरेक्शन क्या है? Along z direction also it is zero because it is not moving along z direction, it is only moving towards positive y direction. And what is the velocity of a along y? So essentially I am asking about uy, so this is nothing but equals to positive u। ठीक है, वहीं अगर प्राइम फ्रेम में देखें, अगर हम प्राइम फ्रेम में देखें तो इन द प्राइम फ्रेम what is u b x, but a prime is also noted। क्यों? क्योंकि हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी, सो यू शुड ऑब्जर्व प्राइम एज वेल। ठीक है, सो प्राइम में अगर वेलोसिटी देखें तो x में देयर इज नो मूवमेंट, सिमिलरली बॉडी b इज नॉट मूविंग अलोंग z ऑल्सो, बट बॉडी b is moving along y in prime frame, and that is given by minus of u। So we have these different velocities। अब हमें इन वेलोसिटीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां हैं, वी आर इन रेस्ट फ्रेम ओनली, एंड इन रेस्ट फ्रेम आपने देखा कि ए बॉडी का क्या वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं, तो ये रहे। लेकिन अगर रेस्ट फ्रेम में ही देखना चाहते हैं कि प्राइम वाली या बी बॉडी का क्या है, देन यू हैव टू अप्लाई वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। ओके, you will have to apply velocity transformation equations। So what are these? So what essentially I mean is, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, बट मुझे पता करना है b की वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन, नॉट x प्राइम डायरेक्शन, अलोंग x डायरेक्शन क्या होगी, b की वेलोसिटी अलोंग y क्या होगी या क्या दिखेगी यहां ग्रीन वाले ऑब्जर्वर को, और b की वेलोसिटी अलोंग z क्या दिखेगी। तो ये तीन चीजें हमें पता करनी है। फाइन, so let us apply velocity transformation equation, and if you will apply velocity transformation equation, you will get ub of x is given by ub of x is given by, आपको अगर पहले से जो इक्वेशंस हमने कल डिराइव की थी अगर वो याद हो तो यू कैन सिंपली राइट, इट कैन बी रिटन एज ub of x prime plus v divided by 1 plus v u x b prime upon c square, where v is what? V is velocity of frame and u is the component of velocity of body। तो वो तो जीरो हो गया, तो यहां से आप लिख सकते हैं u x b की जगह जीरो पुट करें तो दिस टर्म विल बी जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो, यू विल बी लेफ्ट विद इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू b। तो पहली चीज समझ आई कि अगर यहां पर इंसान यानी रेस्ट फ्रेम में एक बंदा है, वो देखेगा मूविंग फ्रेम के अंदर एक बॉडी इस तरीके से मोशन में है, तो उसे वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इतनी दिखाई देगी। डेफिनेटली जब वो पास आ रहा है तो उसे पास आता हुआ भी दिखाई देगा, है ना। अब देखते हैं यू जेड क्या होगा, तो लेट अस डू फॉर यू जेड ऑल्सो। सो यू कैन सिंपली राइट यू जेड बी। अब इसकी इक्वेशन ऐसी नहीं होती, इसकी इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। क्या होती है इसकी इक्वेशन? होती है यू जेड बी प्राइम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस वी यू एक्स बी प्राइम अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए यू जेड तो ऑलरेडी जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो यू जेड बी इज इक्वल्स टू जीरो। दो आई, दो चीजें आ गई। वी हैव नाउ गॉट टू नो व्हाट इज यू एक्स बी, वी हैव गॉट टू नो व्हाट इज यू जेड बी। बी कौन सी बॉडी है? जो मूविंग फ्रेम में है। अब एक लास्ट चीज और बची, व्हाट विल बी यू वाई बी, यानी एक बॉडी आपकी तरफ आ रही है और वो अपने फ्रेम में ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, तो आपको क्या महसूस होगा? इट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू यू वाई
b prime under root of 1 minus v square upon c square divided by 1 plus v u x b prime upon c square. अब u x b prime क्या था, ये देखें, u x b prime था 0, तो ये टर्म नीचे वाला कैंसिल होकर 0 रह जाएगा. You will have u y b is equals to u y b prime under root of 1 minus v square upon c square. और u y b prime कितना, u y b prime was equals to minus u, तो यहाँ लिख लेते हैं u y b is equals to minus u under root 1 minus v square upon c square. We are going to use it. Okay. तो अब मास वाली चीज लाते हैं. सपोज दैट इफ यू आर इन रेस्ट फ्रेम, एक और चीज, वी आर कंसिडरिंग दीज टू बॉडीज टू बी आइडेंटिकल. तो अगर इस वाले को आप रेस्ट मानेंगे तो इसका मास m नॉट हो जाएगा, और इसको रेस्ट मानेंगे तो इसका मास m नॉट हो जाएगा. तो दीज टू बॉडीज आर आइडेंटिकल बाय मास. ठीक है, दैट इज द पॉइंट व्हिच आई मिस्ड. प्लीज नोट दैट आल्सो. सो अगर आप रेस्ट फ्रेम में हैं तो रेस्ट फ्रेम में द मास यू विल ऑब्जर्व इज गिवन बाय m नॉट. मानते हैं कि चलो रेस्ट फ्रेम में मास m नॉट होगा, यानी जो अनप्राइम्ड फ्रेम है उसमें मास होगा m नॉट, और जो मूविंग फ्रेम है उसका मास क्या होगा, दैट इज गिवन बाय m. ठीक है. और अगर टकराने से पहले हम देखें, टकराने से पहले अगर देखें तो व्हाट वी नो इज दैट यू वाई, या जो बी वाली बॉडी है, दैट इज मूविंग विद द वेलोसिटी माइनस यू इन towards negative y axis, and body A is moving towards plus y या positive y axis. ठीक है. तो अगर आप लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएं, सो बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले जो कंडीशन है व्हाट दैट इज, बिकॉज मूविंग फ्रेम में जो बॉडी है उसका मास हम m कंसीडर कर रहे हैं, और जो बॉडी रेस्ट फ्रेम में उसे m नॉट कंसीडर कर रहे हैं, तो what we have is, let us say that जो मोमेंटम होगा, let me call that as momentum, वो इस तरीके से लिख सकते हैं m नॉट रेस्ट फ्रेम में क्या वेलोसिटी थी, रेस्ट फ्रेम में वेलोसिटी थी u y a, और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा u y a को हम u लिख सकते हैं, दैट वी विल चेंज एनी हाउ, प्लस मूविंग फ्रेम m, और मूविंग फ्रेम में क्या वेलोसिटी थी u y प्राइम b. अब इन सबको हम लोग चेंज कर चुके हैं सिंपल टर्म्स में u में, तो वी कैन राइट दैट मोमेंटम बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो मोमेंटम है दैट इज m नॉट u, बिकॉज हमने u y a को क्या लिख लिया था, यहां देखें u, और u y प्राइम b को हमने सब चेंज करके लिख लिया था u x b, तो दैट वी कैन राइट एज माइनस, यहां देखें माइनस, तो ये मोमेंटम कहां से ऑब्जर्व है, अब मोमेंटम भी कहां से ऑब्जर्व किया जा रहा है इस पे डिपेंड करता है, तो एज ऑब्जर्व्ड इन रेस्ट फ्रेम, तो वी विल नॉट यूज प्राइम, वी विल यूज बी ओनली. तो ये हो जाएगा, अगर बी यूज करा हमने केवल, तो दिस विल बिकम माइनस यू इंटू एम इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. ठीक है. एक बार अब तक जो किया वो हम रिपीट करते हैं. There were two bodies, body A and body B. Body B was moving in a frame which was in motion along positive x-axis and was coming towards the stationary frame. Body A is moving in positive y direction with velocity u. Body B is moving in negative y direction with velocity minus u, as observed in their respective frames. लेकिन जब यहाँ खड़े व्यक्ति ने इसकी वेलोसिटी मेजर की, उसे महसूस हुआ कि ये u ही होगी, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी मेजर करना है तो हमें वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लगानी होगी, जो हमने लगा दी.
तो ये रेड और ग्रीन में लिखी अपने अपने फ्रेम की वेलोसिटीज हैं, और जो ब्लू में लिखी हैं वो वेलोसिटी है इस फ्रेम से ऑब्जर्व की गई, रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व की गई मूविंग फ्रेम की वेलोसिटीज। तो वो इक्वेशंस हमारे पास आ गई, दैट हाउ कैन वी राइट यू एक्स बी, हाउ कैन वी राइट सॉरी यू वाई बी, हाउ कैन यू राइट यू जेड बी, वो सारी चीजें हमें पता चल गई। उसके बाद हमने कोलिजन से पहले ये माना कि रेस्ट फ्रेम में मास होगा एम नॉट, मूविंग फ्रेम में मास होगा एम, जो हमें रेस्ट फ्रेम से दिखेगा, ठीक है। When you will be in the moving frame, then you will be at rest with respect to that motion. तो आपके लिए वो मास फिर एम नॉट हो जाएगा, बट हम एक ही फ्रेम में है, रेस्ट फ्रेम में, और हम कहें कि मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं मूविंग फ्रेम में क्या चीज महसूस हो रही होगी। सो दैट्स व्हाई अ स्मॉल करेक्शन हियर, वी विल नॉट यूज प्राइम। सो बिफोर collision दिस विल बी द कंडीशन, फाइन। After collision what will happen is this, the picture will change. After collision मान लीजिए this is, I should have made it with green pen. Anyways, I lost it. Yeah. This is green and this is red. तो हम impact बोल रहे हैं, टकराए हैं. This is the moment of impact. Moment of impact. टकराए हैं, और टकराने के बाद green one will start to move in positive y direction and red one will start to move in negative y direction. पहले ये उल्टे जा रहे थे, अब टकराने के बाद अपनी दिशा बदल दी, ठीक है। So we have made this assumption that these bodies were anyways point masses, ठीक है, ताकि हम और कंफ्यूज ना कर लें खुद को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अप्लाई करने के लिए। एंड नाउ द ग्रीन वन और द बी बॉडी हैज स्टार्टेड टू मूव इन u by p prime has started to move along positive u, और जो रेड वाली है यानी हमारे पास जो u a y प्राइम है, y है, दैट इज स्टार्टेड टू मूव अलोंग माइनस u, उल्टी डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब इनकी दिशा बदल गई, ये पॉजिटिव u हो गई, ये माइनस u हो गई। फिर से आप दोबारा से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस लगाएंगे, सो दैट पर्टिकुलर स्टेप आई कैन स्किप। सेम वही इक्वेशंस आएंगी, बस साइन डिफरेंट होंगे। तो आफ्टर इम्पैक्ट जो इक्वेशंस होंगी, या हम कहें आफ्टर कलिजन जो इक्वेशंस होंगी, वो होगी ये, दैट आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू, एनीवेज वी आर कंसीडरिंग रेड वन टू बी इन रेस्ट, तो एम नॉट इंटू यू विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, प्लस एम यू अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, केवल दिशा बदली है, बाकी सब वैल्यूज वही है। अभी ये m का m ही है, m नॉट का m नॉट ही है। बट यू नो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्सेशन या कंजर्वेशन, सॉरी आई एम वेरी बैड एट दैट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से दीज टू, बिफोर कोलिजन जो आपका मोमेंटम था और आफ्टर कोलिजन जो आपका मोमेंटम है, दैट शुड बी सेम, ठीक है। सो इफ दैट इज द केस, तो हमारे पास जो इक्वेशन आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए, दैट बिफोर कोलिजन इट वाज m नॉट u माइनस mu under root 1 minus v square upon c square. This was the equation before collision. Then this should be equals to the equation after collision, which is minus of m naught u plus mu into 1 minus v square upon c square is under root. If you will solve these two, what you will get is this. यहाँ से m naught उधर गया तो it will become 2 m naught u, और ये हो जाएगा 2 mu under root 1 minus v square upon c square. u से u cancel, 2 से 2 cancel, what you are left with is this, कि अगर आप रेस्ट फ्रेम से ऑब्जर्व करें एक मोशन में है बॉडी, तो उसका मास आपको m नॉट नहीं बल्कि m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर महसूस होगा या दिखाई देगा। So this is a big result.
You will have m is equals to m naught अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये फैक्टर हमेशा 1 से कम होगा तो m नॉट हमेशा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके कुछ केसेस लेकर देखते हैं। तो यू हैव गॉट a nice formula that mass changes with velocity, and it is given by m is equals to m naught under root 1 minus v square upon c square. Please remember one thing, that this m naught is the mass as observed in rest frame. That's why we also call it as proper mass. ठीक है, सेम फ्रेम में है, आप उसी फ्रेम में अगर मेजर कर रहे हैं तो m नॉट दिखेगा, लेकिन आप किसी दूसरे फ्रेम में चले गए which is in relative motion with the frame consisting of mass m naught, then this will change to m naught upon under root 1 minus v square upon c square. अब पहला केस, केस 1, जब v बहुत बहुत छोटा है, अगर v बहुत बहुत छोटा है c से, तो this factor can be neglected and you can simply write that m will be nearly equals to m naught. इसका मतलब Newton was also not wrong. Mass indeed remains constant provided the velocities are very very less than that of velocity of light or speed of light. So he was also correct, but he was only looking at a special case of this mechanics, only one special case. ठीक है, what can be case 2? Case 2 can be that you have a velocity which is comparable to the velocity of light but is always less than. Okay, so in that case what we'll have is this, that your m will be greater than m naught, यानी भारी हो जाएगी वस्तु, बहुत भारी नहीं, भारी हो जाएगी। अब अगर your frame is moving, I'm not saying the body is moving, but your frame is moving with speed equals to that of speed of light, तो आप यहाँ v इक्वल टू सी रखेंगे, 1 माइनस 1 0 और समथिंग अपॉन 0 क्या होता है, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू m नॉट अपॉन 0 विच इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिट मास हो जाएगा किसी भी बॉडी का अगर वो v इज इक्वल्स टू c की रफ्तार से चलती है। इन्फिनिट मास का क्या मतलब है? अच्छा, मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, सबसे पहले जब आपने मास पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू एम ए करके। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि यूनिट किलोग्राम को कितनी फोर्स दी जाए कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो जाए, उसे हम बोलते हैं कि फोर्स कितनी होगी। तो इतनी न्यूटन फोर्स दी तो 1 किलोग्राम मास इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट हो गया। ठीक है, इन्फिनिट मास का मतलब है, भले ही वो पॉइंट मास क्यों ना हो, इन्फिनिट मास का मतलब है कि आपको उसे एक्सेलरेट करने के लिए, एक्सेलरेट करने का मतलब समझिए, ऑल्दो दैट पर्टिकुलर बॉडी इज स्टिल इन मोशन v इक्वल्स टू c, लेकिन आपको उसकी स्पीड और बढ़ाने के लिए इन्फिनिट फोर्स लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब देयर इज अ पर्टिकुलर कैप ऑन वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल। अगर उसकी वेलोसिटी ऑलरेडी c हो गई तो उसका मास ऑलरेडी इन्फिनिट हो गया, और अगर मास ऑलरेडी इन्फिनिट हो गया तो हम उसका और मास या और वेलोसिटी नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी और बढ़ाने के लिए, यानी उसे एक्सेलरेट करने के लिए, हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, और फोर्स कितनी लगेगी? इनफिनिट। क्यों? क्योंकि भाई मास इनफिनिट है ना। दैट्स व्हेन, दैट्स रियली स्ट्रेट। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट mass of a body indeed depends on its velocity, but how well there will be a variation depends on, that depends on what? The variation or the magnitude of variation depends on speed. हमारी जिंदगी में हमें केवल यही दिखता है, v is very very less than c, या m is nearly equals to m. That's why we consider Newton's law and consider that whenever a body is in motion, its mass remain constant. But this is not the case. Okay, so
next time we will see if mass varies with velocity, then जो हमने न्यूटन्स लॉ पढ़े थे वो तो सब इधर उधर हो जाएंगे, बिकॉज वी कंसीडर दैट मास रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हमें न्यूटन्स लॉ में भी रिलेटिविस्टिक करेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो जितने भी आपने न्यूटोनियन मैकेनिक्स में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़े, all will be corrected as per according to relativistic mechanics. That is the part we will cover in the next video.